Hello, my dear students. I think all of you are well in your home during COVID-19 pandemic. So, guys, today I am going to start a new topic of high voltage engineering subject, electrical engineering. So, the topic is application of insulating material. Before that, in my first unit is already completed. The topic of first unit is already completed, and second unit you can go on my playlist HVDC transmission, where up to 5th or 6th lecture, I think 7th lecture, you can cover the entire syllabus of unit 2 of high voltage engineering according to IKG PTU Kapurthala. So guys, this is the first topic of unit 3rd high voltage engineering according to electrical engineering 7th semester syllabus IKG PTU Kapurthala, and it's a first unit across the country in various universities like RGPB, RTO quota in next semester, maybe in 6th semester. So guys, main thing is that we are discussing the overall syllabus of high voltage engineering. First, I complete the syllabus of IKG PTU Kapurthala as per as the syllabus of IKG PTU Kapurthala. Then I will also cover the remaining part of the syllabus of high voltage engineering as per as the RGPB, RTU, BTU and other university across the country. So guys, before going to start my topic, I request you, if you are came first time in my channel, kindly subscribe my channel and share with your friends, those who are studying electrical engineering or electrical and electronics engineering or diploma engineering in electrical engineering branch. Because after 10 to 15 days, I will cover the syllabus of different recruitment examinations like SSC JEE, other state level JEE examinations as well as AE examinations. So guys, for the conceptual knowledge, I also request you, please refer these books. These are the great scholar and professors. Those give us a platform to know about the different topics of our electrical engineering subjects. So I really heads up to these professors and scholars first. And I am going to start a new topic, application of insulating material. तो जब भी मैं ये बात करूंगा एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल की, इट मींस आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली. सो because insulating materials are different properties, we are discussing only the dielectric properties regarding the insulation of electrical systems. थर्मल इंसुलेशन भी होता है, हीट इंसुलेशन भी उसका थर्मल इंसुलेशन का एक पार्ट है, लेकिन हमें वो सब चीजें डिस्कस नहीं करनी है. We just discuss the insulating material used in electrical engineering. So according to International Electrotechnical Commission has categorized various insulating material depending upon the temperature of operation of the equipment under the following categories. आपको पता है एक वुड जो है, ड्राई वुड, वो बहुत अच्छा इंसुलेटर है, लेकिन ड्यू टू द लेस टेम्परेचर बियरेबल कैपेबिलिटी ऑन हाई वोल्टेजेस हम उसको यूज नहीं करते. तो ये जो सारे क्लास डिफाइन किए गए, सबसे पहले देखिए क्लास Y है. क्लास Y is the lowest category. The temperature will be 90 degrees Celsius and the example are natural rubbers, polyvinyl chloride, PVC sheets, paper, cotton and silk without impregnation. सेकेंड की जब मैं बात करूंगा तो क्लास ए आएगा. क्लास ए हैविंग 105 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको यूज कर सकते हैं, इस इंसुलेटिंग मटेरियल को. सेम एज क्लास वाई, उसी तरह से होता है, बट ये इम्प्रिग्नेटेड होता है, इसके ऊपर एक इम्प्रिग्नेशन की हुई रहती है. देन क्लास ई है अप टू 120 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें आते हैं पॉलीथिलीन, टेराफिथलेट, सेल्यूलोज ट्राइसेटेट and polyvinyl acetate enamels. These are the examples of class E type insulators. Similarly, अगर मैं क्लास बी में जाऊं, क्लास बी में आप देखेंगे अप टू 130 डिग्री तक है सेल्सियस. बेकेलाइट, बिटुमिनाइज्ड एस्बेस्ट
फाइबर ग्लासेस, माइका, पॉलीमर, इनेमल, ये सारे एग्जाम्पल है। क्लास F 150 डिग्री सेल्सियस एज क्लास B, बट एपॉक्सी बेसिन बेस्ट रेजिन्स इसके ऊपर लगे रहते हैं। तो आप जो ये देख रहे हैं सारा जो हमने क्लास वाइज अलग किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि कई बार आपको जब आप PSU एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं गेट में, या आप IAS के एग्जाम में, या किसी JEE लेवल के पेपर में, उसमें आपसे पूछा जाता है कि किस क्लास इंसुलेशन की जो टेम्परेचर है वो सबसे कम होती है या सबसे ज्यादा होती है, या इसमें से कोई आपको मटेरियल दे देगा, वो आपसे पूछेगा कि ये कौन से क्लास टाइप इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। तो सबसे कम टेम्परेचर जो बेयर करता है वो है क्लास Y, वो 90 डिग्री तक बेयर करता है, उसमें नेचुरल रबर आते हैं। बाकी जो सबसे हाईएस्ट वाला है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। तो क्वेश्चन आपसे जनरली इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे रिगार्डिंग द क्लास ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। क्लियर है गाइज? तो नेक्स्ट जो हमारा दो है, एक है क्लास H टाइप। क्लास H जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस है, ये सेम एज क्लास B है बट विद सिलिकॉन रेजिन बाइंडर, सिलिकॉन रबर, एरोमेटिक पॉलीमाइड एंड पॉलीमाइड फिल्म एंड एस्टेरमाइड एनेमल इसमें यूज रहता है। अब लास्ट जो है सबसे हाईएस्ट, ये भी आपको कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच क्लास ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल हैविंग मैक्सिमम टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी। तो क्लास C जो है वो आपका सबसे ज्यादा टेम्परेचर बियर करता है, एबव 180 डिग्री। इसमें कौन सा है? एज क्लास B, बट विथ सुटेबल नॉन ऑर्गेनिक बाइंडर्स, टेफ्लॉन एंड अदर हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स जो है इसमें आते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर हमने ये सारा तो डिस्कस कर लिया, क्लास Y है, क्लास A है, क्लास B है, क्लास H है, क्लास C है, क्लास E है, क्लास F है। अब वेयर इट इज यूज्ड, कहां कहां पे हम इसका एप्लीकेशन करते हैं इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सो द इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर नॉर्मली यूज्ड फॉर मेकिंग फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जो भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाएंगे उसमें हमें ये सारे मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो सबसे पहला आपका देखिए ये है पावर ट्रांसफार्मर, ये आपके पावर ट्रांसफार्मर का एग्जांपल है। इसमें आप जो ये देख रहे हैं बुशिंग जो देख रहे हैं HT बुशिंग है, ये हाई टेंशन बुशिंग है, अंदर वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स के कूलिंग मैकेनिज्म होगा। इसमें कितने टाइप्स के इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे, जब हम अलग अलग इन सारे इक्विपमेंट्स को पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है रोटेटिंग मशीन, आप ये देख रहे हैं रोटेटिंग मशीन है, इसमें वाइंडिंग होती है, कॉपर की वाइंडिंग या एल्यूमिनियम की, जो हम वाइंडिंग करते हैं टू मेक द रोटर्स, और उस पे जो हम लोग वाइंडिंग बनाते हैं स्टेटर पे सारे वाइंडिंग, उस वाइंडिंग में जो कॉपर या वो वायर है उसको हम किस तरह से इंसुलेट करेंगे, किस रेंज पे इंसुलेट होगा, वो सारा कुछ उसमें मेंटेन करना पड़ता है अपने। देन है पावर केबल, पावर केबल आप देखिए कितने लेयर्स ऑफ इंसुलेशन इसके में रहते हैं सारे। उसके बाद है आपका सर्किट ब्रेकर्स, आप ये देखिए एक सर्किट ब्रेकर का आपके पास एग्जांपल है, ये आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसमें हमने ऑयल एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया हुआ है, दो बुशिंग आप देख रहे हो ये लगे हुए हैं। देन है पावर कैपेसिटर, ये आपका पावर कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं ये पावर कैपेसिटर किस तरह से है। तो इन सब चीजों को बनाने में हमें सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की जरूरत, सॉरी इंसुलेटिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में आपके कई जगह पे ये जो चीजें मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, ये कई जगह पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट है उसमें भी ये सारी चीजें डिस्कस की गई है। तो और ये जो आपको कहीं पे जो मैं दिखा रहा हूं क्लास A से लेके क्लास C तक, ये सारा का सारा ये नेचुरली जो मेरा एक लेक्चर है इससे पहले आप पढ़िएगा, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन एक टॉपिक मैंने बनाया हुआ है, इसी में है पावर सिस्टम में, इसी में हाई वोल्टेज में ये इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का, उसी में आपको ये पता चलेगा कि ये सब क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। सबसे मेन चीज है कि देखो मेरे इसमें आप एक लेक्चर और देखना, जो मैक्सिमम एनर्जी टू रिक्वायरमेंट एक करके मैंने लेक्चर बनाया हुआ एनर्जी ऑडिट मैनेजमेंट। ये जो सारा पता है क्लास क्यों डिफाइन करता है, ये इसलिए डिफाइन किया हुआ है कि उस इंसुलेटिंग मटेरियल का मैं प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकूं एज पर एज आर रिक्वायरमेंट। टेम्परेचर वहां पे मैक्सिमम जा रहा है 100 डिग्री और हम यूज कर रहे हैं क्लास C इंसुलेटर, क्या मतलब है? वेस्टेज है। क्यों हम वहां पे वो यूज कर रहे हैं जहां मैक्सिमम टेम्परेचर ही 100 डिग्री है, वहां मैं 180 डिग्री वाला इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों यूज करूंगा? तो उस प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए ही ये क्लासिफिकेशन किया गया।
तो आपके सिलेबस में ये पांचों चीजें हैं, पावर ट्रांसफार्मर में किस तरह से यूज होता है, रोटेटिंग मशीन में किस तरह से यूज होता है और पावर केबल में किस तरह से यूज होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैंने लेक्चर जो बनाया है दो पार्ट में बनाया, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं दो डिवाइसेस यूज बताऊंगा आपको, एक पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा आपका सर्किट ब्रेकर। रिमेनिंग 3 जो है वो आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा पार्ट 2 में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर में देखो सबसे पहला लाइन जो लिखा हुआ है, फॉर ए स्मॉल रेटिंग द coils are made of super enameled copper wire for layer to layer, coil to coil and coil to ground craft paper is used। अगर स्मॉल रेटिंग का ट्रांसफार्मर है तो इनेमल्ड कॉपर वायर हम लोग यूज करते हैं वाइंडिंग में। आप देखेंगे जो वाइंडिंग वाली जो जनरली केबल होती है, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आपके घर में ओपन करके देखना, आप ऊपर से टच करोगे तो उसमें करंट सप्लाई नहीं होगा, उसको हम थोड़ा सा हल्के से रफ करके स्क्रैच करके उसके ऊपर से जो इनामल पेंट किया हुआ है ना उसको हम हटाते हैं। वो पेंट नहीं है, वो एक इंसुलेशन है, ताकि हम उसको अगर लपेटते रहे एक दूसरे के ऊपर तो उसमें कंडक्शन ना हो। क्लियर है? फॉर लेयर टू लेयर। अब क्वाइल टू क्वाइल को ग्राउंड से क्राफ्ट करने के लिए जो क्राफ्ट पेपर एक आता है, एक पेपर आता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, एक बाइंडिंग बना ली, फिर उसके बाद जो क्वाइल दोनों है प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बीच में हम लोग क्राफ्ट पेपर यूज करते हैं कि वो पेपर पूरा का पूरा उसके बीच में हमें एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर। अब जब फॉर लार्ज साइज ट्रांसफार्मर की बात हम करते हैं, पेपर और ग्लास टेप इज रैप्ड ऑन द रेक्टेंगुलर कंडक्टर, वेयर एज फॉर क्वाइल टू क्वाइल और क्वाइल टू ग्राउंड इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड यूजिंग थिक रेडियल स्पेसर मेड ऑफ प्रेस बोर्ड और ग्लास फाइबर। तो ये सारी चीजें यूज करते हैं अगर हमें उससे थोड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है। जनरली जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में या स्टेबलाइजर में यूज करते हैं उसमें इस तरह के ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलेंगे। अब आता है आपका इन ऑयल ट्रांसफार्मर, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है जो जनरली आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं, ट्रांसमिशन में देखते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। तो इन ऑयल ट्रांसफार्मर द ट्रांसफार्मर ऑयल इज द मेन इंसुलेशन। जो आपके उस चैम्बर के अंदर जहां वाइंडिंग रखी हुई है उसमें जो ऑयल हम लोग डाल रहे हैं वो सबसे मेन इंसुलेशन का काम करता है। However, between various layers of low voltage and high voltage winding, oil impregnated press boards are placed। तो ऑयल इम्प्रेग्नेटेड प्रेस बोर्ड जो होते हैं वो भी हम लोग लगाते हैं लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड कराने। और ट्रांसफार्मर ऑयल एक और चीज का काम करती है, जब वाइंडिंग में ड्यू टू करंट फ्लो के कारण हीट जनरेट होता है तो उस हीट को भी वो कूल करती है ताकि हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करता है। अब नेक्स्ट है आपका SF6 गैस इंसुलेटेड ट्रांसफार्मर। तो जो SF6 गैस इंसुलेटेड पावर ट्रांसफार्मर मेक यूज ऑफ शीट एल्यूमिनियम कंडक्टर्स फॉर वाइंडिंग एंड टर्न टू टर्न इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड बाय ए पॉलीमर फिल्म। द ट्रांसफार्मर हैज एनुलर कूलिंग डक्ट थ्रू विच SF6 गैस सर्कुलेट फॉर कूलिंग द वाइंडिंग। तो SF6 दो तरह का काम यहां पे कर रहा है, एक तो कूल भी कर रहा है और एक इंसुलेशन भी प्रोवाइड करा रहा है। दिस ट्रांसफार्मर इज यूज्ड वेयर ऑयल ट्रांसफार्मर इज नॉट सुटेबल। इसको हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे आपका ऑयल ट्रांसफार्मर जो है वो सुटेबल नहीं है। और द एंड टर्म्स ऑफ ए लार्ज पावर ट्रांसफार्मर आर प्रोवाइडेड with extra insulation to avoid damage to coil when lightning or switching surge or high frequency are incident on the transformer winding। तो एक जब कभी लाइटनिंग या स्विचिंग सर्ज होता है तो उस केस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं ताकि ये उस तरह का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि जो ओवर वोल्टेज और स्विचिंग सर्ज है उससे हमारे वाइंडिंग को ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में एक पार्ट और होता है दैट इज कॉल्ड बुशिंग। बुशिंग में भी हम लोग इंसुलेटर्स यूज करते हैं, जनरली इंसुलेटिंग मटेरियल। एक तो पोर्सिलिन का बना हुआ हमारा लंबा सा रहता है जो कि इस बॉडी और जो कंडक्टिंग वायर आ रही है हाई टेंशन उसके बीच में एक इंसुलेशन प्रोवाइड कराएगा, एक डिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, क्लियरेंस प्रोवाइड कराएगा। द टर्मिनल बुशिंग ऑफ लार्ज साइज पावर ट्रांसफार्मर आर मेड ऑफ कंडेंसर टाइप बुशिंग। वो एक कंडेंसर टाइप बुशिंग होता है। द टर्मिनल इटसेल्फ कंसिस्ट ए ब्रास रॉड or tube which is wound with alternate layers of treated paper and
tin foil so proportional as to length that the series of condensator formed by the tin foil cylinder and the intervening insulation have equal capacitances. मीन्स उसमें क्या होता है एक्चुअल में, जब बुशिंग हम लोग प्रोवाइड कराते हैं तो बुशिंग की बेटा एक लेंथ होती है. अब बुशिंग की लेंथ होगी तो उसके बीच में जो हम अलग अलग टिन की जो लेयर आप बता रहे हैं इसमें लगाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, जो आप लोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में स्ट्रिंग एफिशिएंसी पढ़ते हो, उसी तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेजेज हो जाता है. तो उसको कम करने के लिए उसमें वो मैकेनिज्म लगाया जाता है ताकि वहां शुरू से लेके लास्ट तक जो लेवल ऑफ वोल्टेज है वो बराबर मेंटेन रहे और ट्रांसफार्मर हमारा प्रॉपर्ली वर्क करे. तो ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं तो जनरली आप याद रखिए 3 जगह पे हमें इंसुलेटिंग मटेरियल की जरूरत है. पहला इंसुलेटिंग मटेरियल हुआ जहां पे हमें उस वाइंडिंग के वायर को इंसुलेट करना है एक दूसरे से. दूसरा, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में हमें इंसुलेशन चाहिए. ऑयल से हम लोग यूज करते हैं, पेपर से. और तीसरा, जो ट्रांसफार्मर से जो हमें कनेक्शन कर रहे हैं उसके बीच में जो हमने बूसिंग बनानी है वहां. तो ये 3 टाइप के हमारे पास मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं ट्रांसफार्मर. क्लियर है? तो जनरली मोस्टली जो यूज होता है बेटा वो होता है ऑयल, और उसके बाद रेयरली यूज होता है हाई लेवल केस में SF6, और जो लो रेंज की जो ट्रांसफार्मर है इलेक्ट्रिकल स्मॉल इक्विपमेंट्स के लिए वहां पे हम लोग वो जो इनेमल्ड कॉपर वायर होता है उसी को हम लोग यूज करते हैं. क्लियर है ये चीज? तो नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका कैपेसिटर्स, पावर सर्किट ब्रेकर्स. तो सर्किट ब्रेकर्स में हम लोग कैसे यूज करते हैं? तो सर्किट ब्रेकर पहले पढ़िए. पहले मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं. वैसे तो मैं जब स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको सर्किट ब्रेकर के डिफरेंट टाइप्स भी बताऊंगा, कितने टाइप्स होते हैं, और आपको इसमें टाइप्स पता चल जाएगा. आप अगर ये थोड़ा सा देख लेंगे उसी में आपको टाइप्स डिफाइन हो जाएंगे. तो पहला जो है अपना, इसमें सर्किट ब्रेकर कहता क्या है वो देखो. द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी सर्किट ब्रेकर्स रिक्वायर द सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स in an insulating fluid which serves two functions are as. तो जो आप ये देख रहे हैं बेटा सर्किट ब्रेकर्स क्या होता है, 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक एयर या जो भी आपको गैस या लिक्विड हम लोग देते हैं. इट विल मेंटेन द इंसुलेशन बिटवीन 2 कॉन्टैक्ट्स. जैसे ही ओवर वोल्टेज होगा कहीं पे वो ऑपरेट हो जाएगा, उनके बीच में जो आर्क है वो डेवलप हो जाएगा और उनके बीच जो डाइलेक्ट्रिक हमने फील्ड डेवलप किया है वो ब्रेक हो जाएगा, कंडक्शन होगा, रिले विल ऑपरेट एंड स्विच विल बी ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट. क्लियर है? तो इसका 2 फंक्शंस होता है. पहला होता है इट एक्सटिंग्विशेस द आर्क ड्रॉन बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स व्हेन द सर्किट ब्रेकर ओपन्स. तो ये एक आर्क प्रोवाइड कराता है बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स व्हेन द सर्किट ब्रेकर ओपन होता है. इट प्रोवाइड्स द डिजायर्ड इंसुलेशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स एंड फ्रॉम कॉन्टैक्ट टू ग्राउंड. मींस दोनों कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट से जो ग्राउंड होता है उसके बीच में एक डिजायर्ड इंसुलेशन प्रोवाइड हमें इंसुलेटिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है. अब मुझे ये बताओ कि अगर 220 kV के ट्रांसमिशन में मैं सर्किट ब्रेकर यूज कर रहा हूं तो क्या मैं उसको जमीन पे ही थोड़ी रख दूंगा? वी नीड टू मेंटेन द अर्थ टू लाइन क्लियरेंस. और सर्किट ब्रेकर तो इतना सा होता तो क्या मैं उसके लिए उसको जमीन पे रखने, जमीन से हवा में कैसे रखूंगा उतनी ऊंचाई? तो उसके लिए भी हमें एक पोर्सिलिन का लंबा सा डक्ट बनाना पड़ता है अर्थ टू लाइन क्लियरेंस मेंटेन करने. अगर मैं मेटेलिक ही पूरा स्ट्रक्चर बना दूंगा तो फिर वो मेटल के थ्रू कंडक्शन होने लगेगा ग्राउंड में. तो बीच में हम लोग एक पोर्सिलिन का लंबा सा, जैसे जितनी क्लियरेंस मेंटेन करनी होती है उतना ऊंचा हम लोग वो बना देते हैं. अब नेक्स्ट जो आपका है वो नेक्स्ट है द इंसुलेटिंग फ्लूइड्स कॉमनली यूज्ड फॉर सर्किट ब्रेकर. तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर के लिए, जनरली देखो बेटा सर्किट ब्रेकर के लिए हम लोग 2 ही टाइप के मटेरियल यूज करेंगे. पहला हम लोग करेंगे गैस और दूसरा करेंगे लिक्विड. तो गैस का केस पहले देखते हैं. एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल एयर है हमारे पास उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यूज कर लेते हैं. अब उसमें क्या प्रॉपर्टी है हमें पता है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और अदर गैसेज ऑल्सो. तो ये यूज होता है सिर्फ और सिर्फ अप टू 11 kV के लिए और इसको जनरली हम लोग एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर्स में यूज करते हैं. क्लियर है ये चीज आपका? ठीक है, तो इसको हम लोग उसी में यूज करते हैं. अब आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका कंप्रेस्ड एयर सर्किट ब्रेकर. तो कंप्रेस्ड एयर सर्किट ब्रेकर जो आपका है
उसको देखिए आप लोग कंप्रेस्ड एयर सर्किट ब्रेकर में हम लोग क्या यूज करते हैं। तो कंप्रेस्ड एयर सर्किट को हम लोग जनरली इन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग एयर को कंप्रेस करके देते हैं और इसकी जो रेंज होती है दैट विल बी 220 kV टू 400 kV के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। आजकल अप टू 400 kV अप टू 220 kV ट्रांसमिशन जो हमारे ग्रिड सब स्टेशन होते हैं वहां पे हम इसी को यूज करते हैं। तीसरा है आपका मिनरल ऑयल, जहां हम लोग ऑयल यूज करते हैं। तो ऑयल को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। पहला है प्लेन ब्रेक ऑयल, इसको हम लोग 11 kV टू 66 kV में यूज करेंगे। दूसरा है कंट्रोल्ड ब्रेक ऑयल, इसको हम लोग 66 kV से 220 kV में यूज करेंगे। और तीसरा है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, MOCB आपने सुना होगा, उसकी रेंज है 66 kV से 132 kV ओनली। तो ये हो गया ऑयल का। अब एक आता है हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और एक आता है SF6 सर्किट ब्रेकर्स। तो अल्ट्रा हाई वैक्यूम जो है वो हम यूज करते हैं अप टू 33 kV तक के लिए, और SF6 गैस जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस जो है उसको हम लोग मोर देन 220 kV पे यूज करते हैं। तो ये सारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं लिक्विड और गैस के फॉर्म में विच आर यूज्ड टू मेक ए सर्किट ब्रेकर बाय अप्लाई फॉर दीज टू फंक्शंस। दो फंक्शंस को हम लोग करने के लिए ये नीचे जो हमारे ये मटेरियल है इसको हम लोग यूज करते हैं। तो जो आपका पार्ट 2 है बेटा, पार्ट 2 में आपको मैं पावर केबल में किस तरह से एप्लीकेशन होता है इंसुलेटिंग मटेरियल का, आपके रोटेटिंग मशीन में किस तरह से होता है, और पावर कैपेसिटर में, ये मैं सेकेंड पार्ट 2 जो होगा इंसुलेटिंग मटेरियल का उसमें डिस्कस करूंगा। इसके लिए अभी इतना ही। आप रेफर कर सकते हैं हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग बाय प्रोफेसर RS झा, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग बाय प्रोफेसर CL बाधवा, और इन सारे राइटर्स को इन्होंने काफी अच्छे से इन सारी चीजों को वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। फॉर गेटिंग मोर एंड कंसेप्चुअल नॉलेज यू विल रेफर दीज बुक्स, आप इनको जरूर फॉलो करें। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थैंक यू। और उससे पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फैकल्टी है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। आप अपने फ्रेंड सर्किल में, आप अपने कॉलीग्स में शेयर करें। सो गाइज, दिस टॉपिक इज नाउ कंप्लीटेड। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन भी जरूर दबाएं। थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट।